آج ویو 360 میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری، لیکن گھر کا بجٹ چلانے والی مائیں پریشان۔ جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی۔ بیرون ملک سے ڈالر بھیجنے والوں کو پاکستان میں مہنگائی کیسے متاثر کر رہی ہے، اور ایک سزا یافتہ قاتل جو آج اپنے علاقے میں نئی جان ڈال رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات میں استحکام کے اشارے، کیا عام آدمی کی مالی مشکلات بھی کم ہونے والی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکی کمپنی موڈیز پاکستان کی معاشی ریٹنگ منفی سے مستحکم پر لے آئی ہے، جبکہ کراچی اسٹاک ایکسچینج مسلسل 5 ہفتے کی تیزی کے بعد پیر کو 40,000 کا مارک کراس کر گیا۔ ایسا 10 ماہ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ IMF نے بھی پاکستان سے متعلق اپنے حالیہ جائزے میں اطمینان کا ہی اظہار کیا۔ ان مثبت اشاریوں کو حکومت کی پالیسیوں کا ثمر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس مسئلے کی جس کا ہر پاکستانی سامنا کر رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ کنزیومر پرائس انڈیکس، جو کہ صارفین کی روزمرہ ضرورت کی چیزوں میں مہنگائی کا نام ہے، اس کا اگر جائزہ لیں تو وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سال ایک عام پاکستانی کے لیے ضروریات زندگی خریدنا مسلسل مشکل ہوتا گیا۔ سال کے آغاز پر مہنگائی کی شرح 5.6% تھی۔ جولائی میں بجٹ آیا، IMF سے قرضوں کا پروگرام طے ہوا، تب تک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 8.4% تک پہنچ چکی تھی۔ اور تازہ ترین اعداد و شمار ہمارے پاس اکتوبر کے ہیں، جب حکومت کے مطابق مہنگائی کی شرح 10.4% کو چھو چکی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق سال کے آخر تک یہ 12% تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر یومی اجرت پر کام کرنے والوں سے لے کر لاکھوں کی ماہوار تنخواہ لینے والے ہر شخص پر ہی ہو رہا ہے۔ ہماری ساتھی صدرہ ڈار نے کراچی میں کچھ ماؤں سے بات کی جو کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانا اب ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ کراچی کی رہائشی سیما کئی برسوں سے 2 کمروں کے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ سیما بیوہ ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی ہیں۔ زندگی آسان تو کبھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی مہنگائی کے سبب مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ فروٹ کے پاس سے کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی فروٹ ہم خرید نہیں سکتے، کیونکہ اتنا مہنگا فروٹ ہے۔ گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، پاؤ لیتے تھے، پاؤ میں سے 2 حصے کر کے پکاتے ہیں، اب اس کو بھی کہاں تک کم کرے گا انسان۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تھوڑے، اب تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاؤ اور ½ کلو لے کر آتے ہیں۔ پاؤ میں پکتی ہے سبزی، پہلے کلو میں پکتی تھی سبزی۔ بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں گھر کا بجٹ چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ روز بروز بڑھتی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں سے غریب گھرانوں کے لیے جہاں مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس مہنگائی سے متوسط طبقہ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ بنش ایک ورکنگ ویمن ہے، فیملی مختصر ہے اور دونوں میاں بیوی کمانے والے۔ اس کے باوجود مہنگائی سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوا ہے۔ پہلے میں صرف لکھ رہی ہوتی تھی، اب مجھے مائنس پلس کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں یہ چیز لوں گی، اگر میں نے شیمپو لے لیا تو کنڈیشنر نہیں لوں، پاؤڈر لے لیا تو لوشن نہیں لوں، اور سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی۔ روپے کی قدر گرنے سے اشیاء کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن خریداروں کی آمدن نہیں بڑھ رہی۔ دھاگا 10 روپے کی گٹی ہو گئی، لیکن ہماری سلائی پہ کوئی پیسہ نہیں بڑھتا، محنت پہ ہماری کوئی پیسہ نہیں بڑھتا۔ یہ ہمارا حکمران کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں ملی۔ 4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منفی سے مثبت ہوا ہے۔ اس سے ملک کا بجٹ چلانے والوں کی تنگی تو شاید کچھ کم ہو سکے، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنانے والوں کی مشکل تبھی دور ہوگی جب روزگار کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ یہ بیلنس جو ہے وہ ایکسپورٹ انکریز کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ امپورٹ ڈیکریز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر یہ ایکسپورٹ اگر انکریز کرتے تو اس کا کچھ اثر اس پہ آتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امپورٹ کو ڈیکریز کر کے جو ہے وہ انفلیشن میں کوئی اثر آئے گا۔ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے، ٹارگیٹ نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو آپ کا نا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے بجٹ کو مینٹین رکھ سکیں۔ مائیں کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو تو مار سکتی ہیں، مگر بچوں کی خواہشوں کا کیا کریں۔ اکثر یہ کہتی ہے پیزا کھانا ہے،
اب پیزا کا یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہم کبھی بھی آرڈر کر لیتے تھے, اب ہم ویکینڈ کا ویٹ کرتے ہیں. مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کا بجٹ چلانے والی خواتین کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور انہیں انتظار ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ان کا بوجھ کب کم ہوگا. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی. پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے. مالی سال 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً $22 بلین بھیجے, جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے. اور معاشی ماہرین کی توقع یہ ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ریمیٹنسز یا ترسیلات زر $23 ارب کو چھو لیں گی, جو ایک ریکارڈ ہوگا. روپے کی قدر گرنے سے ویسے تو ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو لگتا ہے کہ جو باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں ان کے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہوگی, لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, یہ بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد. واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹوران چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں. 900 سے 1000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی, تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا, کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا. ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا. ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے, ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی. زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے, کیونکہ جب آپ کا ₹1,00,000 ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 1,20,30,000 ایکسپینس ہو جائے گا, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے. پاکستانی معیشت چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے, تو جب بھی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, اس کا نتیجہ اکثر ملک میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے. امریکہ میں پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں. ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے. اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں. تو یہاں جو خریدار وہ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا, آپ کے بال تو سستا اڑ رہی ہے. تو یہ خیال تو غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں جن گھروں میں ہر ماہ امریکی ڈالرز پہنچتے ہیں, ان کو دوسرے گھرانوں کی نسبت مہنگائی کے چیلنجز کم درپیش ہیں. دوسری جانب یہاں امریکہ میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1% کمی ہوئی. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پاکستان کی معیشت سے متعلق جو مثبت اشارے ہمیں ملے ہیں, ایک تو موڈیز کی جانب سے پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک میں جو بہتری آئی ہے, اسٹاک ایکسچینج کی ہم نے بات کی, ریمیٹنسز کی ہم نے بات کی, تو کچھ پازیٹیو اشاریے ہیں. لیکن ایک عام کنزیومر کے لیے اس کا کیا مطلب ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے, فائنینشیل ایکسپرٹ محمد اعظم یوسف زئی سے. اعظم صاحب بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کرنے کا. سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کیجئے کہ ایک عام کنزیومر جو مہنگائی سے پریشان ہے, اس کے لیے جو مثبت اشاریے پاکستان کے معیشت کے بارے میں ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں ملے ہیں, وہ کیا معنی رکھتے ہیں, کیا معنی ان کو ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ اشاریے جو ہیں وہ مجھ جیسے آدمی کے لیے, آپ کے لیے, یا فائنینشیل سیکٹر سے جن لوگوں کا تعلق ہے, جو پروفیشنلز ہیں, ان کے لیے تو معنی رکھ سکتے ہیں. وہ بھی جب تک کہ وہ پڑھیں, سمجھیں اور اس سے انڈرسٹینڈ کریں اور فیوچر کا لائحہ عمل طے کریں کہ آگے ان کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا. جہاں تک بات ہے 22 کروڑ عوام کی, 22 کروڑ عوام میں سے 98% ایسے لوگ ہیں, 2% کو ہٹا کے, جن کو آٹے, دال, چینی, ٹماٹر, پیاز, ان معاملات سے زندگی باہر نہیں نکلتی ہے, اور یہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے صبح, اور یہیں پہ زندگی ختم ہوتی ہے ان کی. ان کو یہ اشاریے بہتر ہونے سے, نیچے جانے سے, اوپر جانے سے, IMF کا لون دینے سے, CPI کے نمبرز وہ اپ ڈاؤن ہونے سے, ان کو اس سے کوئی لینا دینا, کوئی غرض نہیں ہوتا ان کا. اور جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے اسد کی, وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جامع رپورٹ ہے. اس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ چیزیں کہ جہاں انٹرنیشنل انویسٹرز نے پاکستان کے اندر جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجا وہ ٹھیک ہے. دیکھیے آپ نے جس طرح کہا کہ عام بندہ کو تو آٹے دال کی قیمتوں سے غرض ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو مثبت اشاریے ہیں, یہ کیا معیشت پہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, ان کا اثر کیا ہوتا ہے جو پھر آگے چل کے ایک عام صارف کی زندگی پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ مطلب معیشت میں ہم کس قسم کی بہتری کی اس وقت توقع کر سکتے ہیں اگلے 6 مہینے کے دوران؟
देखिए मईशत के हवाले से अगर देखें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। पिछले 30 सालों के अंदर जो मामला हुए पाकिस्तान की मईशत के साथ और पाकिस्तान के साथ, वो सबके सामने, वो सबने पढ़े हैं, सबको जानते भी, सबने देखे भी हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि 17-18 महीने में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी इस हुकूमत से, पीटीआई हुकूमत से, वो एक्सपेक्टेशन किसी भी हवाले से आम आदमी की पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब मामला ये है कि जो महंगाई की इस वक्त जो तनासुब है, जो महंगाई का यहाँ पे रेट है और जो इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज है। उसकी समझ नहीं आती वजह, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है चेक करने वाला। एक चीज जो 20 रुपए किलो चलना शुरू होती है खेती बाड़ी करके, जब खेती करता है, जब फसल काश्त करता है एक किसान, और वो मंडी में आते आते वो 50 रुपए किलो हो जाती है, बाजार में आते आते वो 200 रुपए किलो हो जाती है। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि आम आदमी जो 98% आबादी है पाकिस्तान की, मतलब 20 करोड़ आबादी जो है वो इससे अफेक्ट होती है, उसके ऊपर कोई क्रॉस चेक बैलेंस नहीं है। हम IMF के लिए टीम बनाते हैं, हम जो है वो FATF के लिए टीम बनाते हैं, हम CPI के लिए नंबर्स के लिए टीम बनाते हैं, हम बाकी मामला को देखने के लिए टीम बनाते हैं, हम पॉलिटिकली टीम, लेकिन आम आदमी के लिए 20 करोड़ आवाम के लिए एक टीम बनाने की जो ग्रास रूट लेवल पे काम करे और आम आदमी को सहूलियत से दे। मतलब सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इशारे हैं, जो एक बिग पिक्चर है, उस पर सिर्फ ना फोकस किया जाए, बल्कि जो आम कंज्यूमर की डे टू डे जिंदगी है उस पर भी फोकस किया जाए। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि महंगाई के बारे में माशी माहिरीन ये भी कहते हैं कि एक हद तक महंगाई अच्छी होती है मईशत के लिए, वो उसको स्टिम्युलेट करती है। पाकिस्तान के केस में हमें यह होता नजर नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में महंगाई का मुस्बत असर क्यों नहीं माशी सरगर्मियों पर नजर आ रहा? ये बात वो टीवी पे कर सकते हैं, किताबों में लिख के कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के दरमियान, आवाम के दरमियान आगे करें कि आगे CPI नंबर्स का बढ़ना जो है वो मईशत के लिए बेहतर होता है, तो फिर उनको उसका प्रॉपर तरीके से जवाब आवाम ही देगी। बात ये है कि ये CPI के नंबर्स बढ़ाना या इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है इसका। अगर स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि जी आपकी CPI इन्फ्लेशन 12% रहेगी, मुझे लगता है कि नवंबर के जो नंबर आएंगे, पहले आपको पता है जब इन्होंने सबसे बड़ा तो ये एक सेंटर की नजर आया कि जब ये हुकूमत आई तो उसने CPI की जो कैलकुलेशन थी, जो कैलकुलेट करके ये पहली तारीख को दे देते थे अगले महीने के अंदर, वो उन्होंने उसका फार्मूला चेंज कर दिया। फार्मूला चेंज करके इन्होंने कहा कि पहले से लेके 15 तारीख तक जो है वो पहले कैलकुलेट होता था, हम पहली से लेके 30 तक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले भी ये होता था कि 15 दिन पिछले महीने के होते थे, 15 दिन अगले महीने के होते थे, जब जाके वो नंबर्स कैलकुलेट किए जाते थे और अगले महीने की 1 तारीख को CPI दी जाती थी। तो उन्होंने उसको जो है वो चेंज किया, नंबर्स को उन्होंने डिफरेंट किया। अब ये कि 11.5% CPI के नंबर है, हुकूमत कह रही है कि 11.5% है, पुराने फार्मूले से 12% है। मैं समझता हूँ कि जो नवंबर की CPI के नंबर आएंगे वो 13% से ज्यादा होंगे और इससे साथ कोई बेहतरी नहीं आएगी इकोनॉमी के अंदर। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी के बाइस है। करंट अकाउंट डेफिसिट का नीचे आ जाना, ये कोई क्रेडिबिलिटी, कोई असर जो है वो फायदा हुकूमत ने नहीं दिया। ये 18 महीने की परफॉर्मेंस नहीं है बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट का नीचे आना। आपका क्रूड जो है वो $87 पे हो गया, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्ट जो है वो बेतहाशा कम हो रही है। जी, आजम खान यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सबसे अहम सवाल तो यही है कि जब मईशत के बारे में बड़ी सतह पे बिग पिक्चर में अच्छी खबर मिलती है तो वो एक आम सारिफ के लिए क्या मायने रखती है, और आपका तज्जिया यही है कि फिलहाल एक आम सारिफ को रिलीफ मिलने की तवक्को जो है वो नहीं है, अभी मजीद वक्त देना होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वॉइस ऑफ अमेरिका के शो में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने बात की, मईशत एक बहुत ही पेचीदा मौजू है, लेकिन मुतासर तो ये हर शहरी को करता है। तो इसी मौजू पर तफसीली रिपोर्ट्स और मजीद तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे, जहां आपको दुनिया भर से अहम खबरें भी मिलेंगी। आज की एक अहम खबर, अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि तालिबान के साथ किसी भी अमन मुआहदे का ताल्लुक अफगानिस्तान में फौज की तादाद में कमी से नहीं होगा। हमारी तमाम तर कॉन्टेंट आपको facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर भी मिलेगी। इसके साथ साथ ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी इत्तेहाद नेटो अपने क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहा है, जिसके लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लंदन में हैं। नेटो की बुनियाद 17 मुल्कों ने अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में रखी थी। आज 29 मुल्क इसके रुकन हैं, लेकिन इस इत्तेहाद के साथ ट्रंप इंतजामिया की जो वाबस्तगी है उस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। नेटो के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात के बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाल मशरकी शाम में तुर्की की तरफ से कुर्दों के जेर कंट्रोल इलाके में हमले के बाद लड़ाई जारी है। सदर ट्रंप ने अक्टूबर में अपने नेटो के इत्तेहादियों से मशावरत के बगैर ही अमरीकी अफवाज को शाम से निकालने का हुक्म दिया था। बिल्कुल इसी फैसले के रद्द-ए-अमल में फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा था कि इत्तेहाद जमूद का शिकार हो गया है और इससे अमरीकी क़यादत का फुकदान जाहिर होता है कि वो कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बजाय अपने रास्ते पर चले।
इसी दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की फिजा के पस मंजर में सदर ट्रंप को मुआवजे का सामना है। यूरोप के मशरिक और जनूब में दो तनाज़ात नेटो इत्तेहादियों के साथ अमरीका के पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद पेचीदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप खुलेआम तो ये नहीं कहते कि नेटो अपनी अफादियत खो चुका है, मगर उसके अराकीन पर तनकीद करते रहते हैं कि वो अपनी मजमूई पैदावार का 2% दिफा पर खर्च करें। अमरीकी हुक्काम ने यूरोपीय रहनुमाओं को नेटो से अपनी वाबस्तगी की यकीन दहानी कराई है, जैसा कि उसके मशरकी ममालिक में फौजी ताकत को मजबूत करने के इक़दाम से ज़ाहिर होता है। अमेरिका इत्तेहाद को नजरअंदाज कर रहा है। उनमें से बाज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सदर ट्रंप 1 साल के बाद अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे, लेकिन हकीकी खदशा भी है कि दूसरी मुद्दत के लिए कामयाब हो सकते हैं। यूरोप भर में रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है। फ्रांस स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की बात कर रहा है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, मगर पोलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग दे रहा है और अपनी सिक्योरिटी की खातिर सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है। फिर दरमियान में जर्मनी है, जो नेटो के इत्तेहाद पर यकीन रखता है और समझता है कि नेटो को देखना चाहिए कि यूरोप की सलामती को कैसे यकीनी बनाया जाए, और दूसरी जानिब फ्रांस की दलील को भी समझता है। तो यूरोपीय ममालिक इत्तेहाद के बारे में मुख्तलिफ दलाइल पर बात कर रहे हैं। इस हफ्ते यूरोपीय ममालिक के सामने एक मकसद ये भी है कि कैसे सदर ट्रंप के साथ तल्ख कलामी से बचा जाए, जैसे कि माजी में हो चुका है। वो उन तमाम इकदामात का जिक्र कर सकते हैं जो उन्होंने किए हैं, और बहुत होशियारी से कह सकते हैं कि सदर ट्रंप के दबाव की वजह से हुआ है। तो वो एक तरह से सदर ट्रंप की तारीफ कर सकते हैं, हालांकि इन शख्सियात के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात की वजह से ये बहुत मुश्किल है। सरबराही इजलास से कबल नेटो ने ऐलान किया कि वो अखराजात बांटने और नेटो के बजट में वाशिंगटन की इमदाद में कमी के ख्याल से इत्तफाक करते हैं, जिसका मकसद सदर ट्रंप को मुतमईन करना है। पैट्सी वुडाकोसावारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये तो थी रिपोर्ट नेटो को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के बारे में, लेकिन एक नजर डालते हैं तारीख पर भी। ये वो मनाजिर हैं जब अप्रैल 1949 में 17 मुल्कों का वाशिंगटन में इजलास हुआ था और नेटो के क़याम का बुनियादी मकसद दूसरी जंग अज़ीम के बाद सोवियत यूनियन की मुमकिन जहरियत का मुकाबला करना था। नेटो का अहम तरीन उसूल आर्टिकल 5 कहलाता है, जिसके तहत एक रुकन पर हमला सब पे हमला तस्वुर होगा। और नेटो मुआहदे पर दस्तखत के वक्त बरतानवी वजीर खारजा ने कहा था कि हमारे अवाम जंग नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का खतरा पैदा हुआ तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। Our peoples do not want war and do not glorify war, but they will not shrink from it if aggression is threatened. आज नेटो के 20,000 फौजी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि इत्तेहादी आज सिर्फ रूस पर ही तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि दहशतगर्दी और साइबर क्राइम्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। Do we really want to be remembered? क्या हम वाकई एक ऐसी नस्ल के तौर पर याद रखे जाना चाहते हैं जिसने मसले से आंखें चुरा लीं? जब जमीन तबाह हो रही थी, हम चैन की बांसुरी बजा रहे थे। और ये थे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में दुनिया के 200 मुल्कों के मंदूबीन ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को रोकने के इक़दामात पर मुज़ाकरात के लिए जमा हुए हैं। ताज़ा तरीन जायज़ों के मुताबिक आज हमारे माहौल में नुकसानदेह ग्रीन हाउस गैसों की रिकॉर्ड मिक़दार मौजूद है, जबकि माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के दर्जा हरारत को काबू में रखने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी की कोशिशें इंतहाई नाकाफ़ी हैं। तो क्लाइमेट चेंज की शिद्दत को कम करने के लिए ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी मादनी जो ईंधन है उसका इस्तेमाल कम किया जाए, ताकि फ़िज़ा में कार्बन गैसों का अखराज कम हो सके, जो कि आलमी हिद्दत का बाइस बनती है। समन खान हमें मिलवा रही हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से जो रिवायती तरीक़ों की मदद से इस मसले के हल में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मिलिए एहसन रशीद से, जो उम्र भर कनाडा में कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। 74 साल की उम्र में माहौलियाती तब्दीली की संगीनियों का इल्म हुआ तो अपने मुल्क पाकिस्तान को खतरे से दोचार पाया। तहकीक का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अमेरिका जाकर सेवरी नामी इदारे से तरबियत ली और एक नया आइडिया लेकर पाकिस्तान पहुंचे। एक ऐसा आइडिया जिससे दर्जे हरारत मुनासिब सतह पर रह सकता है। कार्बन का खेल है ये सारा। कार्बन को हमने फिजा में से निकालना है और जमीन में दबा देना है।
मंसूबे पर अमल दरामद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी का तामुन हासिल हुआ। पत्तोकी में इदारे ने 5 एकड़ जमीन और 50 भेड़ बकरियां दी। रकबे को 30 हिस्सों में तकसीम करके जानवरों को चराने का अमल शुरू हुआ। जब एक पैडक को छोड़ के दूसरे पैडक में जाते हैं तो पीछे वो क्या छोड़ के जाते हैं? वो अपना गोबर छोड़ के जाते हैं, वो अपने पेशाब छोड़ के जाते हैं, वो अपने थूकें छोड़ के जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स की चीज़ें छोड़ के जाते हैं और साथ अपने हूव से, अपने पाँव से ये सारे इलाके को गूंद के जाते हैं। इस तरीके कार से इस जमीन की काबिलियत बढ़ी और अब ये बंजर जमीन मसनूई खादों के बगैर ज्यादा फसल दे सकती है, जिससे किसान का खर्चा कम हो सकता है। एहसन रशीद की टीम के ही एक और मेंबर राव सुहेल ने भी जमीन की पैदावार बढ़ाने का एक और अमल बायोचार मुतारिफ कराया है। फसलों की बाकियात, लकड़ी के जाया शुदा मवाद से तैयार होने वाली इस खाद से फसल को पानी कम लगाना पड़ता है। बायोचार जो है ये एक खाद है और पानी की रीस्टोर का एक सोर्स है। इसको इस्तेमाल करने से ना आपको कोई स्प्रे करना पड़ेगा, ना कोई बीमारी पैदा होती है फसल के अंदर, और आपकी जो फसल है, जो उसकी पैदावार है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ताउन से वो 1500 किसानों को बायोचार बनाने की तरबियत दे चुके हैं। एहसन रशीद और उनकी टीम का अगला हदफ 78% खुश्क हिस्से पर मुश्तमिल पाकिस्तान को मजीद खुश्क होने से बचाना है, जिसके लिए वो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने और माहौल को गर्म होने से बचाने के लिए बहुत से और मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, पत्तोकी। और अब बात करते हैं अमेरिका की। तकरीबन 10 साल कबल जब इस मुल्क में माशी बहरान आया तो इससे कम आमदन वाले इलाके बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, जहां माली मुश्किलात के बायस लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि वह किस्तें नहीं अदा कर पा रहे थे। ऐसे शिकस्त हाल मोहल्लों में बहाली की कोशिशें आज भी जारी हैं। अमेरिकी शहर शिकागो में गुर्बत और जराइम से मुतासरा एक इलाके में नई जान डाल रहा है एक सजा याफ्ता कातिल। एक साबिका गैंग मेंबर इस वक्त अपनी जिंदगी के साथ शिकागो शहर की कम्युनिटीज की तामीर नौ का काम भी कर रहा है। बहुत अर्सा पहले जब मैं शायद 16 साल का था तो वो मुझे स्लिक के नाम से पुकारते थे क्योंकि मुझे बहुत से मसलों से निकलना आता था। 16 साल की उम्र में स्लिक ने मंशियात से मुतालिक एक जुर्म के दौरान एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस जुर्म में उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। लोग मेरी इज्जत करते थे क्योंकि मैंने वहाँ किसी की बेइज्जती नहीं की। मैंने वहाँ कायदे के मुताबिक वक्त गुजारा और वहाँ से निकल आया। अब स्लिक हसन स्मिथ बन चुके हैं एक 60 साल तामीराती कॉन्ट्रैक्टर। वो और उनकी बीबी शिकागो लॉन नामी इलाके में रहते हैं, जहाँ उन्होंने 2019 में एक घर खरीद कर इसकी मरम्मत की। सन 2008 का मॉर्गेज या घरों की कुर्कियों का बहरान खास तौर से इस जैसे कम आमदनी वाले इलाकों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। सैकड़ों कुर्कियां हुई और सैकड़ों घर खाली छोड़ दिए गए। हसन स्मिथ अब अपना वक्त हाल ही में जेल से रिहा होने वाले अफराद के साथ काम करते हुए गुजारते हैं। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो सही लोगों के लिए सही काम करने की कोशिश कर रहा है। किसी की मदद करने की कोशिश, किसी की मदद के जरिए मुआशरे का एहसान लौटाने की कोशिश। मुझे अपने सफर में बहुत मदद मिली तो वैसा ही करना मेरे लिए दुरुस्त है। मकामी मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर वो तब्दीली की तामीर कर रहे हैं। सन 2013 से यहाँ की मकामी तंजीमों ने खाली घरों की बहाली के लिए ग्रांट्स और गवर्नमेंट फंडिंग्स की मद में लाखों डॉलर्स इकट्ठे किए हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम एक ऐसी सूरत हाल में बेहतरी लाते हैं जो कि हो सकता है नाउमीदी से पुर होती। शिकागो का एक और इलाका जो हो सकता है कि मुकम्मल लावारिस छोड़ दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकागो लॉन के इलाके की पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक सन 2008 से अब तक तशद्दुद और दूसरे जराइम में 45% कमी हुई है। अरशद बसाती के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। अगर आपके पास भी कोई इंस्पायरिंग कहानी है तो हमें जरूर बताइए, हम उसे व्यू 360 का हिस्सा बनाना चाहेंगे। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आप अपने व्यूज हमसे शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। सारा जमान को भी इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।